Uh, yeah. Let's just start with the session. I am Pranjal Gupta, and presently we are for the all people who are here on Zoom. You can always ask a question in the chat box. We are also live on Facebook, and if there are any queries, you can right away ask on Facebook itself or on the Discord. Also, you can ask. So we'll be starting with the session. Is it fine by everyone? Am I audible clearly? Please give me a cue or anything like that. Uh, just write it in the chat if I'm audible or okay. Yes, sir, you are audible. Okay. Yes, sir, you are audible. Thanks a lot. So let us just start. Also, I just want all of you to know that it's a very informal kind of a session. So it's not like कि तुम लोग बोल नहीं सकते या फिर कुछ नहीं. We've given permissions to everyone. और ये बिल्कुल informal session होने वाला है. We want every one of you to interact with us. तो तभी सही रहेगा. ठीक है. तो let's just get on with it now. And anyone जो वीडियोस ऑन कर सकते हैं वो प्लीज वीडियोस ऑन करो बिकॉज वी वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव एंड सो दैट वी कैन नो कौन कौन हमारे सेशन में आज आया है. सो प्लीज जो भी वीडियो ऑन कर सकता है वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज मेक योर वीडियोस ऑन. Please feel free to. Yeah. Thank you so much, guys. Thanks a lot, everyone. Yeah, it's great. Hi, Deepak, Pranjal, Lavnish. Nice name, Pranjal. Supreet. Hi. Hi, everyone. It's okay. So let's just start now. Chahadidi, shall I continue? Yeah. Okay, cool. We'll be starting. So greetings again, everyone. I am Pranjal, and I, along with the LUG team, will be interacting with you all in today's orientation session. To begin with, I know that you all must have been tired of watching the same old session of Hacktoberfest from I don't know how many societies. So don't worry, हमारा goal थोड़ा सा different होने वाला है. So let me just start off by introducing us. This is the Linux user group, or LUG as we like to call it. We are a bunch of people who work on projects and not on events, keeping Linux in focus, as our name suggests. No big brain time. We are a part of a community that is spread throughout the world. Free feel to read about this community on the web. There is also a Wikipedia page dedicated to this community. For the people who don't know what Linux is, which is totally fine by the way, मेरे को भी नहीं पता था क्या था college में आने से पहले Linux. It is an operating system. It is a free and open source operating system. Operating system just like your Windows and Mac OS, but unlike them, which cost us loads of money and God knows how many restrictions, Linux is absolutely free and gives us the independence of changing it as per our needs. तो यार चलो सबसे पहला ना क्वेश्चन ये सुनने के बाद आता है कि यार ये सब तो ठीक है पर मैं क्यों करूं. ठीक है, मेरे लैपटॉप में तो विंडोज आया था ना, मैं तो अमीर हूं, मेरे पास मैक है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, तो मैं लिनक्स सीखूं ही क्यों? The answer to this question is quite simple, and which is that Linux is the most favored operating system for developers around the world. According to top500.org, feel free to visit on the web again, starts of June 2020, Linux is used directly in almost 55% of top 500 tech machines. And out of the remaining 45%, 36% use customized version of Linux. याद है ना, बोला था कि Linux को हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं. तो yes, जो 36% है वो जो बचे हुए 45% में भी वो भी एक डिफरेंट वर्जन ऑफ लिनक्स उसी को तोड़ मोड़ के अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करके ही यूज कर रहे हैं. ठीक है, वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लिनक्स जो कि आई एम प्रीटी श्योर तुम सब जानते हो, तुम सबने देखा होगा, वो एंड्रॉइड है. ठीक है, एंड्रॉइड इज नथिंग बट अ लिनक्स बेस्ड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो यू कैन प्रोबब्ली गेस कि हाउ द नंबर ऑफ एवेन्यूज लिनक्स ओपन्स अप फॉर यू जस्ट बाय गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड टू लिनक्स. एनीवे, तो आज की ओरिएंटेशन का पॉइंट क्या है? ठीक है, वी वोंट बोर यू विद समथिंग जो तुम सब जगह देख कर आ रहे हो, सुन कर आ रहे हो. We'll be interacting with you. We want to clear your doubts. We want you to know कि यार projects भी एक बहुत important part है जो तुम्हारे आगे जाने में बहुत help करने वाला है तुमको. Also, we've prepared some very awesome hacks for you. Sounds interesting, right? Chaha Didi will take up from here. Thank you, Pranjal. So first of all, जो भी अभी PC से connected है,
हर एक ने एडमिशंस के टाइम पे थापर की साइट तो खोल ली होगी आई गेस, राइट? अभी दोबारा अपने पीसी पे थापर की साइट खोलो एंड लेट मी आल्सो शेयर माय स्क्रीन सो दैट आई कैन आल्सो Guys, unmute if you don't want to ask anything, okay? Only unmute if you want to ask something. Mute yourself. Yes guys, so my screen is visible Yes. and सभी ने अपने पीसी पे थापर की साइट खोल ली होगी आई गेस टिल नाउ। Yeah. या ओके, सो थापर का वेब पेज आ रहा होगा, राइट? एनीवन? Yeah, it's Yeah, here. yeah. Yes, ma'am, we have open. Okay, so I am on the website of thapar.edu. I didn't get the same response. I'm opening it again. What's this thing? Can anyone tell me? I'm opening Thapar's site. There's nothing like that. I'm just typing thapar.edu, but it's not opening Thapar's site. Can anyone just, even just a hint? See, thapar.edu. हम बाईपास करके बोलते हैं ऐसे कुछ. Redirected to the other page. Yeah, sorry, I am not able to hear you. Redirected to the IIT Bombay website. How? But I am not redirecting it anywhere. I am just typing thapar.edu. मैम बाईपास करके कुछ बोलते हैं ऐसे. बाईपास तो नहीं करा मैंने, कुछ बाईपास नहीं हुआ मैंने कहीं पे भी. Yes, कौन बोल रहा है? या just मेरा तो thapar.edu ही खुला. आपका तो thapar.edu ही खुलेगा. I am just asking मेरा क्यों नहीं खुला? Is this DNS spoofing? Who's that? Nimesh. Could you just make your video on or it is on already? Okay, yeah. Yes, Nimesh, what you said, DNS spoofing. Yes. How could you say that? Because the URL of the URL mentioned is not changed, but it's getting directed to a different DNS server. Could you please tell me like why it is only applicable on my PC and not happening anywhere else? I don't know that. Okay. I attended only a hackathon, so I know only this much. Okay, okay. So anyone else from the whole people who are here? Anyone else? So okay. Without wasting much of your time, Nimesh was right. It was DNS spoofing, but it was just on my level, like on my local PC only. So what we can do, what is not ethical actually, हम different levels पे जाके DNS spoofing कर सकते हैं कि जब कोई भी कुछ भी और वेबसाइट खोले उसको कुछ ना कुछ और मिल जाए. So just a simple hack, nothing very wild or nothing anything in this. I have just changed the host file. जब भी हम अपने ब्राउजर से कुछ भी सर्च करते हैं तो फर्स्ट इज इट चेक्स आवर होस्ट फाइल, और उस होस्ट फाइल में मैंने अपने thapar.edu को आईपी जो लिंक करा वो मैंने आईआईटी बॉम्बे का आईपी लिंक कर दिया. सो इट्स जस्ट रीडायरेक्टिंग इट टू आईआईटी बॉम्बे. जस्ट दिस थिंग will let you change this thing, and it is the DNS poisoning at just my level. Next level might be the router level. मैं घर के सभी PCs में ये चीज change कर दूं. Next can be the ISP level, then the country domain level. It can move higher and higher. Okay, guys. So it's just a little trick which I want to show you. So next, I'll hand over to Jatin. Jatin, please, could you please? So guys, hello, I am Jatin. तो आपको होपफुली ये वाली ट्रिक मतलब समझ आई होगी अच्छे से काफ़ी. तो ऐसी और भी सारी ट्रिक्स हैक्स हैं जो मतलब हम अपनी सोसाइटी में यूज़ करते हैं. तो आप लोगों ने मतलब कितनी बारी नेटफ्लिक्स चलाया होगा, और एक और ट्रिक होती है जो हम अभी आपको दिखाएंगे, वो ऐसी कितनी ही साइट्स पे एप्लीकेबल होती है और वो बहुत ईजी होती है. तो कई लोग जैसे अपने नेटफ्लिक्स का पासवर्ड किसी का खुला हुआ है या फिर किसी फ्रेंड का खुला हुआ है, मतलब तो आप वहां से बिना उसका पासवर्ड जाने
वो वाली चीज उठा सकते हैं और उसको अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। तो नेटफ्लिक्स वाली साइट पे मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको oneplus.in की एक सिंपल साइट है जिसके ऊपर मैं आपको ये वाली चीज करके दिखाऊंगा। जो नेटफ्लिक्स वाली चीज होगी वो आपको खुद ट्राई करनी होगी और हमें बताना होगा कि ये पॉसिबल हो पा रहा है उस पर या नहीं हो पा रहा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी मैंने अपना एक नेट अकाउंट बनाया हुआ है oneplus.in की वेबसाइट पे। सिंपल ये मेरी मेंबरशिप नाम है और यहाँ पे नाम है और यहाँ पे लिखा आ रहा है साइन आउट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंपल सी ट्रिक्स हैं, ये कोई ज्यादा औखी हाई लेवल हैकिंग नहीं होती है, मतलब कि जैसे बहुत हाई लेवल है कि नहीं जी हमसे होगी नहीं, और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा हवा बनाया हुआ है कि हैकिंग है बहुत अच्छी चीज है। बट अच्छी चीज तो है बट वो काफी सिंपल भी है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स और लॉजिक बिहाइंड दैट थिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसकी मेरे पास 2-3 एक्सटेंशंस हैं। एक एक्सटेंशन सिंपल सी है कुकी एडिटर वाली। तो अब ये सिंपल कुकी एडिटर की एक्सटेंशन है, मैं इससे अपनी जो सारी कुकीज हैं इस वाली साइट की वो मैं सारी की सारी एक्सपोर्ट करूंगा। जब मैंने यहाँ से कुकीज एक्सपोर्ट करी उसके बाद मैं दोबारा जाके यहाँ पे साइन आउट कर दूंगा। अब वो सारी कुकीज मेरे क्लिपबोर्ड पे पेस्टेड हैं, मतलब क्लिपबोर्ड पे पेस्टेड हैं। तो अब आपने किसी के लैपटॉप से गए और वहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करके पूरी कुकीज उठा ली। तो अब दोबारा यहाँ पे साइन इन और साइन अप मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं दोबारा से अपनी उसी एक्सटेंशन में जाऊंगा। एक बार मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ। दोबारा से मैं उसमें जाऊंगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। अब एक सेकंड, अभी भी आप देख सकते हैं कि ये साइन आउट है। यहाँ पे मैंने सारी कुकीज दोबारा इंपोर्ट पे सिलेक्ट करा और मैंने सारी की सारी कुकीज सेम तरीके से इंपोर्ट कर दी। नाउ आई अगेन क्लिक ऑन इंपोर्ट बटन। इंपोर्ट करने पे वो कहता है कुकीज वर क्रिएटेड। सो अब यहाँ पे मैं एक्सटेंशन को बंद करूंगा। अब यहाँ पे साइन इन साइन अप कुछ नहीं है, बट इफ आई रिफ्रेश माई ब्राउजर देन यू कैन सी दैट आई एम साइंड इन अगेन विद माई सेम आईडी। तो अब ये वाली सेम ट्रिक मैं आपको 2-3 साइट्स बता देता हूँ, जैसे कि hungama.com और नेटफ्लिक्स पे तो ये चलती है अगर आप चला सकें। तो किसी और को ट्राई करनी है तो ये वाली ट्रिक जरूर ट्राई करना। एक्सटेंशन का नाम अगर किसी ने पूछना है तो वो आपको मिल जाएगा ओरिएंटेशन के एंड में। हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे जो इस एक्सटेंशन का होगा सेम, जिसको आप मोजिला फायरफॉक्स के ब्राउजर में इंस्टॉल करके चला सकते हो। So anybody having any doubts? Okay, one person raised his hand. So now I am stopping my screen share, guys. You can ask anything if you want. I think one person raised his hand. सर एक्चुअली इंटरनेट की लैंग्वेज में Yes, can you ask again, please? सर वैसे कुकीज होता है क्या इंटरनेट की लैंग्वेज में? यार कुकीज ये होती है कि जब तू एक साइट के ऊपर पिंग करता है, मतलब तूने फेसबुक पे रिक्वेस्ट डाल दी अपनी या फेसबुक साइट तुमने ओपन करी, तो जब तूने फेसबुक ओपन करी तो तेरे को बार बार वो वाली फेसबुक ओपन करनी है। फेसबुक वालों को पता है कि उनका प्रोडक्ट एडिक्टिव है तो तू रोज चलाएगा वो चीज। तो वो क्या करते हैं अपना लोडिंग टाइम स्लो करने के लिए, और कई बार तेरे पासवर्ड जो है वो लिखा नहीं आता ऑटो सेव योर पासवर्ड या अपने पासवर्ड अपने आप ही सेव कर दो। यस सर। तो वो वाली चीज को करने के लिए कि आपका पासवर्ड सेव हो जाए, आपकी स्लाइड मतलब जो आपकी वेबसाइट है वो थोड़ी तेज रिफ्रेश हो या तेज रीलोड हो, वो क्या करते हैं थोड़ी बहुत ही चीजें हमारे ब्राउजर के कैश में स्टोर कर देते हैं। ये सारी चीजें कंप्यूटर के टेम्परेरी फोल्डर में स्टोर होती हैं। तो जब भी तू दोबारा फेसबुक चलाता है तो आधी रिक्वेस्ट तो वहां से आती है, जो तेरा नया डाटा जैसे कोई नया मैसेज आया वो सब तो फेसबुक के सर्वर से आएगा, बट जो फेसबुक पेज की जो चीजें हैं जैसे उसका लोगो हो गया वो हर बारी आना ही आना है। तो वो सारी जो चीजें हैं वो तेरे ब्राउजर के कैश से आती हैं। इसलिए कई बारी बोलते हैं, कई बारी तुमने देखा होगा वेब कियोस्क पे या थापर पे बोलते हैं कि अपना कैश रिफ्रेश करो या कुकीज क्लियर करो तो तुम्हारी साइट खुलेगी। उससे क्या होता है कि उस वेबसाइट की एक नई कॉपी आती है वहां से। Yeah. Also, before we take on any further doubts, Nimesh, I just want you to unmute yourself if it's possible. Yes. Yeah. So, as you all know, that Nimesh quite correctly guessed what the hack was to a very great extent.
So we are inviting him directly to the PI round. We'll of course be telling you what the process of interviews will be, like what will be the process of recruitment for LEG. But yes, for everyone who will be scoring good or performing good in whatever questions we ask or the quiz that we have planned for you, you'll get a chance to be appearing or be invited to the interview straight. So congratulations, Nimesh. Thanks. Any further doubts? You may please ask. Actually, I want to also say something. Nimesh has also personally messaged me that it will not be possible on Netflix. I think, Nimesh, if the Netflix has a 4-user type account, then it may be possible there. Yeah. So you can try, and if you don't, if it is not successful, you can ping us on our Instagram page. We will surely reply you. Yeah. Thank you, Nimesh. साइन इन की इंफॉर्मेशन लेने गए तो फिशिंग का भी यूज कर सकते हैं बट फिशिंग के लिए दूसरे बंदे को आप पे भरोसा होना चाहिए कि वो अपना वगैरह सब भरे वहाँ पे। तो और किसी को इस ट्रिक के रिलेटेड कोई भी डाउट? तो फिर इतनी बड़ी बड़ी साइट्स हैक क्यों नहीं हो जाती? जब मतलब नेशन वाइड पे करेंगे अगर हम, तो इतनी बड़ी बड़ी साइट्स क्यों नहीं हो पाती? होती है ना यार, मतलब कि तूने वो देखा नहीं, वो अकाउंट्स मिल रहे होते हैं कि नेटफ्लिक्स के 800 वाला अकाउंट्स इधर 200 के बिक रहे होते हैं। वो बेसिकली उनका डाटाबेस उठा लेते हैं पूरा का पूरा, या फिर फेक क्रेडिट कार्ड जनरेट करके उनमें डाटा। तो यार मल्टीपल चीजें होती हैं, एक किसी भी वेबसाइट में वल्नरेबिलिटीज होती हैं और हैकर्स का काम कुछ नहीं होता उन वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करना होता है, समझ रहे हो? तो होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है। ओके सर। सर ये जो कुकीज आपने डाउनलोड करी, तो ये कुकीज हम दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करके उधर भी खोल सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, इसी सेम तरीके से तो खोल सकते हो। मतलब सिंपल ये एक इसको ट्रिक का नाम होता है जेसन पार्सिंग। तुम्हें बस ये वाली जो फाइल है वो उठा के उसके कुकीज वाले जो मेरी एक्सटेंशन थी जिसकी मदद से मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें साइट की कुकीज में ये सेम डाटा डालना है। और ये सब मतलब एथिकल हैकिंग के अंडर आता है। कोई ऐसे मतलब ट्राई मत करना जाके कहीं भी, मतलब ऐसे कई बार पंगे भी हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम बाद में कहोगे हाँ भैया ने सिखाया था, हमने तो कर दिया। जिसके साथ भी करोगे यार तो उससे पहले परमिशन लेना रिटर्न में। कहीं ऐसे तुम किसी और पे कर दो, दोस्त पे कर रहे हो तो चलो कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं मानेगा। पर अगर ऐसे सोसाइटी चल रही है ऐसे अगर उसके बिना, किसकी परमिशन के बिना करोगे तो वो तुम्हें आराम से। Okay, so shall we move forward? If anyone doesn't have any doubt, we can move on to the next hack. Cool. Let's move on to the next hack. We have Rohit. Yeah. Hello everyone. Hi Rohit. So what I will do is like मैं क्या करूँगा, मैं तुम पार्टिसिपेंट्स में से 2 लोगों की मेल चाहता हूँ, मेल आईडी। कोई इंटरेस्टेड है रेज हैंड कर दो और वो अपनी मेल आईडी दे दो मुझे। There's nothing like that, Gurdeep. Nothing like that. Don't fear about that. कुछ ज्यादा खराब नहीं करेंगे। मैं प्राइवेटली मैसेज करूँ या चैट बॉक्स में? चैट बॉक्स में। Your mail. Just chat box. Just a mail. हाँ. Anmoldeep is asking what are the consequences. People are already scared. नहीं भाई कुछ नहीं करते, हम भी एथिकल हैक करते हैं, किसी को वो नहीं करेंगे यार। किसी को कुछ हार नहीं जाएगा। Okay, we have multiple IDs. Okay. I have 3 replies here. बस बहुत है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये एक है गुरदीप सिंह है ना, और दूसरा है दीपक बांसल। तो मैं क्या करूंगा, एक की मेल आईडी से एक दूसरे की मेल आईडी पर मेल डाल दूंगा और तुम लोगों को पता भी नहीं लगेगा। It would be great. We'll be asking Deepak and Gurdeep to just confirm this. So hang on to that. It will be happening right in front of you. ये देख लो कि जिसको मतलब जाएगी मेल वो अपनी शेयर कर पाएगा स्क्रीन मेल देखने मैं कर पाऊंगा।
मैं करता हूँ। ठीक है और जिसकी मेल से भेजा जाएगा वो कंफर्म भी कर देगी उसी की मेल है। ठीक है, तो दीपक will be confirming and Gurdeep will be showing the email. Okay. और भाई ये सब सिर्फ सिखाने के लिए है, मतलब सिर्फ बताने के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ. People are already answering like what the trick is exactly in the chat box. Great. So anyway, if anyone has any doubts or like just wants to ask anything about us, feel free to. While the process is in, like it's still in process, feel free to ask us anything. Sir, is it possible to operate Linux or Windows in one PC or not, sir? Yes. Dual boot. It is called dual booting your laptop. You can run multiple OSs on a single laptop or a system. You can dual boot your laptop. How can it be done, sir? Can you explain? It's actually a process. We can share the resources in the Discord. There are multiple videos available on YouTube as well. For all the people who are you in our Discord server, everyone? Yes, sir. Sure. So you may ask it there, and we'll share the resources with you. Like what can be done. Excuse me, sir. I wanted to ask that how will dual booting affect my laptop? Will it affect any performance, or will I be facing any performance issues when I use it? No, actually not. It's just like separating your storage into two separate spaces. Like जैसे पूरी पहले जो storage थी वो तुम्हारी Windows का allocated थी, अब उसका एक part जो होगा वो एक दूसरे operating system को allocate हो जाएगा. कुछ कंपनीज डू टेल कि अगर तुम डुअल बूट कर रहे हो तो हम तुम्हारी वारंटी वॉइड कर देंगे. कुछ कंपनीज, बट तुम लोग ये चेक कर सकते हो उनकी वेबसाइट पे, सभी नहीं करती. एंड जहां तक मुझे याद है डेल और एचपी तो नहीं करती. तो दैट इज वन थिंग. और डुअल बूट से परफॉर्मेंस पे इशू इतना नहीं पड़ने वाला. ऑफ कोर्स 2 OS चलेंगे, पर एक टाइम पे एक ही OS चलता है तो इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता. तुम्हें हेल्प भी होती है इनफैक्ट. ये तो साथ में लोग वर्चुअल बॉक्स यूज कर लो, उससे कोई पंगा नहीं होगा. वर्चुअल बॉक्स यूज कर सकते हो अगर तुम्हारे लैपटॉप में परफॉर्मेंस ठीक है. मतलब उसमें यार एक्चुअली परफॉर्मेंस का इशू पड़ जाता है क्योंकि रिसोर्सेज काफी यूज करता है वर्चुअल बॉक्स या फिर VMware थोड़ा ज्यादा स्टेबल है. तो ये भी एक ऑप्शन है. सर जैसे जब वर्चुअल बॉक्स यूज करेंगे तो उसमें वर्चुअल बॉक्स और ड्यूअल बूटिंग के अंदर मतलब फर्क क्या होगा? जैसे अगर हम लिनक्स को ऑपरेट कर रहे हैं. लक्ष्य थोड़ा क्लियरली बोल सकते हो क्या? तुम्हारी आवाज मेरे को क्लियर नहीं थी. यस सर. सर एम आई ऑडिबल नाउ? श्योर, गो अहेड. सर जैसे जब हम मतलब काली लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में भी ऑपरेट कर सकते हैं और ड्यूअल बूटिंग से भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो मतलब दोनों में कोई मतलब फर्क आएगा जब हम ऑपरेट करेंगे? डेफिनेटली आएगा. दोनों के अपने प्रोज और कॉन्स हैं. वर्चुअल बॉक्स में तुम्हारी परफॉर्मेंस कम आती है, ठीक है, पर तुम्हें सिक्योरिटी होती है कि तुम्हारा कोई पंगा होगा कि तुम्हारा लैपटॉप नहीं मिस होगा, ठीक है. डुअल बूटिंग में तुम्हें अपने लैपटॉप के सारे रिसोर्सेज को 100% यूज करने का मौका मिलता है. हार्डवेयर सपोर्ट बेटर मिलता है कि मान लो कैमरा वगैरह एक्सेस करना है तो 2 मिनट में ड्राइवर्स इंस्टॉल होके हो जाता है. वर्चुअल बॉक्स में तुम्हें बहुत बारी पाथ के इश्यूज आने वाले हैं. मतलब तुम सीख जाओगे टर्म्स अगर नहीं समझ आ रही है तो इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट. तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. अगर तुम थोड़ा भी ट्राई करने के लिए चाह रहे हो कि यार एक बार देख लेता हूँ कि मेरे से होगा या नहीं है, तो तुम VMware या वर्चुअल बॉक्स पे ट्राई कर लो. बट हाँ, वंस यू आर कॉन्फिडेंट, और एक पॉइंट आता है कभी कभी ना एक डेवलपर की जिंदगी में जब विंडोज उसका साथ देना छोड़ देती है, ठीक है, तो उस टाइम पे तुम्हें जब फील होने लगे ना कि हाँ यार अब तो लिनक्स इंपॉर्टेंट हो गया, तो तुम डुअल बूट कर सकते हो. मैंने ट्राई किया था वर्चुअल बॉक्स से लिनक्स को मतलब करने के लिए, काफी ज्यादा स्टोरेज इसमें लग रही थी तो फिर बीच में प्रोसेस कैंसिल कर दी. प्रोसेस, हाँ, वो एक सिक्योरिटी रहती है बस वर्चुअल बॉक्स में यार. अभी सारी चीजें कर लेंगे तो मतलब ओरिएंटेशन बहुत लंबी हो जाएगी यार. तो डाउट्स डिस्कॉर्ड पे ले लेना, वरना हमसे बाद में किसी को एलजी को इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना, वो रिप्लाईज मिल जाएंगे. मतलब हम लोग बाद में कोई किसी को कोई अगर होगा तो कोई वर्कशॉप लगा लेंगे, कोई ऐसे कुछ. कोई दिक्कत नहीं. हाँ गुरदीप सिंह, एंड तुम अपना इनबॉक्स चेक करोगे? यस सर. सेट इनबॉक्स ओके. इस इनबॉक्स में अगर नहीं भी मिलेगी, एक बार स्पैम फोल्डर भी चेक कर लेना. चेक कर लेना. जी सर.
स्पैम में नहीं है। हाँ जी आ गया। स्क्रीन शेयर कर सकते हो क्या एक स्क्रीन बार? शेयर कर सकता हूँ जी। हाँ। So guys, here it is. Oh, you opened the wrong link, I अरे guess. ये क्या खोल दिया? कौन सी मेल आईडी से भेजी थी? ऊपर ये नहीं और कोई क्वेश्चंस में है प्रमोशंस। अच्छा या राइट राइट राइट। Deepak Bansal, yeah. Hi, how are you? So guys, this is the trick. राइट। तो जिसकी मेल आईडी थी वो कंफर्म कर सकता है कि उसी बंदे की थी। Deepak, can you unmute yourself and just? प्लीज कंफर्म, ये आपने नहीं भेजी। नहीं सर मैंने नहीं भेजी थी, पता नहीं कैसे ही उसके पास चली गई। हो गया। So that what hacking is. So if you have any questions, feel free to ask. Rohit will answer them. Everyone of us will try and इस answer. वाली ट्रिक के तो बहुत क्वेश्चंस होंगे, एंड में पूछते हैं इससे रिलेटेड। सेव कर लो यार इस वाली ट्रिक के रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं। Rohit, you would like to ask any question Yeah, from the people here. from Yes, people here? what I did was like जब आप मेल भेजते हो तो क्या होता है, जैसे आपकी डोमेन है, Don't tell them. Just ask them any question which you feel like they must answer or they must have guessed. तो किसी को आइडिया है मैंने क्या किया था? Is it something to do with your own SMTP server? Yes. You are right. तो ये किसने आंसर दिया, एक बारी नाम बता दो भाई। सुप्रीत बेहरा। ओके, तो फर्स्ट ट्रिक का जो गेस्ट था वो किया था निमेश गर्ग ने, आई थिंक। या निमेश गर्ग ने। सेकंड ट्रिक का किसने किया था? सुप्रीत बेहरा। ओके, और नेटफ्लिक्स वाली का उसका तो बताया गया था। उसका ये बता थोड़ी दो। गलती हो गई। ठीक है, 2 ट्रिक्स का हो गया अभी तक। कोई नहीं, जो नेटफ्लिक्स वाली थी वो कोई और करके दिखा देगा अपने को, ये ओरिएंटेशन ऐड होने से पहले जो सबसे पहले करके दिखाएगा वो उसको मिल जाएगा। कोई नहीं, उसको सब पीआई में डाल देंगे। यस, तो लग जाओ भाई सारे, जो सबसे पहले करेगा उसको मिल जाएगा। राइट। ये अगर नेटफ्लिक्स का अकाउंट ना हो तो भाई hangama.com पे चला जा, वहाँ पे अकाउंट बना ले और उससे हो जाएगा। हंगामा से पंगे ले ले मतलब। हाँ कोई पंगा नहीं उस पे, तो नेटफ्लिक्स की वजह से कोई पंगा नहीं हो जाता उस पे भी। I hope you people are enjoying and it's not just a boring type of orientation. We've tried to make it as interactive as possible क्योंकि हम तुम्हें वही सेम चीजें करा के बोर नहीं करना चाहते। No, this is miles better. Thank you. So, shall we move forward or anything anyone want to ask? I think Harshit Taneja is raising his hand. Harshit, please unmute yourself and ask whatever you want to. Okay, Anmoldeep has a question as well. Jatin bhaiya, if you would like to take it up. Okay, I will definitely explain this if you are having any doubts. What I did with Netflix was, what I do want you to do with Netflix is that first of all, copy its cookies. You have to search a cookie editor extension in which you can copy cookies from someone's website in which it has already been logged in. मतलब जहाँ पे पहले से लॉगिन हुआ है उसकी कुकीज उठानी है और अपना वगैरह वहाँ पे सब साइन इन करना है, और उसके बाद दोबारा किसी जहाँ पे पहले से साइन इन नहीं हुआ वहाँ पे कुकीज पेस्ट करनी है और फिर जस्ट अपनी वेबसाइट रिफ्रेश करनी है। अब वो कुकी एडिटर कौन सा है वो तुम्हें मोजिल्ला फायरफॉक्स के प्ले स्टोर पे जैसे उसका एक्सटेंशन जो होता है उस पर भी मिल जाएगा, तो वो तुम्हें अब ढूंढना है खुद। I hope it's clear. Yeah. So I think अगर किसी और का कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है, तो let's just move forward with the other hack. Anyone, any questions? Excuse me, I wanted to ask. Sure. It's more of a general question. That since you are our seniors, I wanted to ask that whether you have prepared or attempted OSCP examination What for examination? hacking.
ethical hacking examination OSCP. Hello Ariman. Hello Ariman. Actually OSCP, I wanted to actually crack this exam, but it was too expensive. It's around 80,000 to 1 lakh to invest. So actually I'm trying to. I will definitely take this exam one day. Sure. Then I will answer your question more clearly. Thank you. Pratik Bhaiya is also a member of LUG. He's in 4th year, and in fact, he's going to be performing the next hack. So stay tuned for that. Yep. Actually, Pratik Bhaiya is our most senior hacker or ethical hacker, you can say. He knows a lot, much more than all of us. So maybe he will mentor you guys if you are very much interested to join us. Much more better than us, I say. So we'll continue with Pratik Bhaiya now. Hello everyone. So myself Pratik Singh, and I am in 4th year COE branch and currently placed in Novartis Business Solutions and in IT department. Also former tech head of LUG. So अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक लाइव वेबसाइट पे एक छोटा सा ट्रिक है, मतलब समझना काफ़ी इजी है, बट it gives us a lot of information about the website, or also you can say about the developer. So let me share my screen first. Is it visible? it is. So मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी ये वेब क्यूएसए वाला पेज ओपन कर लें जो मैंने ओपन कर रखा है. क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करा रहा हूँ सिर्फ. तो ये पेज जब ओपन कर लो सारे. आप सभी को वेब कियोस्क का पता है, फ्रेशर्स को तो शायद नहीं पता होगा वेब कियोस्क का. जस्ट लेट मी नो इफ यू नो अबाउट इट. अगर नहीं पता है तो हम चैट बॉक्स में लिंक डाल देंगे. हम लिंक डाल देते हैं. भैया आप लिंक शेयर कर दो so that nobody has some doubt or anything. मैंने कर दिया, कोई बात नहीं. ओके. तो अगर अभी जो मैं लाइव वेबसाइट पे हैक दिखाने वाला हूँ, उसके पहले हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि आखिर सर्वर में डायरेक्टरीज कैसे वर्क करती हैं. ठीक है, तो पहले मैं वो बताऊंगा कि कैसे डायरेक्टरीज वर्क करती हैं, उसके बाद फिर हम लाइव वेबसाइट को हैक करेंगे. ठीक है. सो अगर तुम ये देखोगे यहाँ पे अपने लिंक जहाँ पे तुमने पेस्ट करा होगा, वहाँ पे आ रहा होगा thapa.edu/student/pages/webkiosk. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा, मैं पेजेस तक का इरेज कर रहा हूँ. ठीक है, मैंने पेजेस तक का डिलीट कर दिया, सिर्फ बचा हुआ है thapa.edu/student/. अब मैं यहाँ पे इंटर करने वाला हूँ. ये पेज ओपन होता है, आप खुद भी ओपन करके देख लो. ये ओपन हो रहा है ओवरव्यू. ठीक है. तो अभी क्या करना है कि उसमें मैंने पेजेस भी डिलीट करा था ना, अब पेजेस को वापस लाते हैं. पेजेस को वापस लाते हैं और इंटर. फिर से वही पेज ओपन हुआ, कोई डिफरेंट पेज नहीं ओपन हुआ. ठीक है. तो एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ, अगर तुम लिंक को ध्यान से देखो, thapa.edu/students, उसके बाद /pages/webkiosk, ये एक फोल्डर है. मतलब thapa.edu सर्वर में हमारा स्टूडेंट्स नाम का फोल्डर है, उसमें ये वेब पेज भी है और उसके अंदर ये पेजेस नाम का भी एक फोल्डर है. ठीक है. और उसके अंदर ये webkiosk है जो अपन अभी देख रहे हैं. ठीक है. ये एक्चुअली बिल्कुल सेम है जैसे अगर तुमने पहले कभी सॉन्ग्स डाउनलोड करे होंगे अपने पीसी में, तो लोकल ड्राइव में हम ऐसा रखते थे कि लोकल ड्राइव डी ओपन करा, उसमें सॉन्ग्स नाम का फोल्डर होगा, फिर उसके अंदर हिंदी सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, फिर हिंदी में न्यू ओल्ड, तो ऐसे डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी. तो ऐसा बिल्कुल वही डायरेक्टरी मतलब फोल्डर. ठीक है. टू मेक इट क्लियर, डायरेक्टरी एग्जैक्टली फोल्डर है, कोई डिफरेंस नहीं है. जो तुम लोकल ड्राइव में बनाते हो वही है. ठीक है. तो thapa.edu के अंदर स्टूडेंट्स नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर पेजेस है
नाम का डायरेक्टरी है, उसके अंदर वेब कियोस्क नाम का डायरेक्टरी है, लेकिन हम स्टूडेंट्स फोल्डर को ओपन एक्सेस कर पा रहे हैं, वेब कियोस्क को एक्सेस कर पा रहे हैं, पर पेजेस नहीं कर पा रहे हैं। एक बार फिर से ट्राई करो, वेब कियोस्क हटा के सिर्फ पेज ओपन करने का ट्राई करो, देखो नहीं हो रहा, वो वापस से स्टूडेंट्स पे चला जा रहा है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऐसी वेबसाइट पे, तो थापर क्या है ना कि पेजेस ओपन नहीं करने दे रहा, तो इसका मतलब है कि ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपने सर्वर को कॉन्फ़िगर करा होगा, कॉन्फ़िगर बहुत अच्छे से करा है कि पेजेस ओपन ना हो, वो क्योंकि किसी काम की नहीं है। अगर वो ओपन होता तो हमें फालतू की इन्फॉर्मेशन दे देता हैकर्स को, ठीक है। तो एक्चुअली हमें, तुम्हें इससे क्या पता चलता है कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए कोई भी डायरेक्टरी एक्सेस करने के लिए। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि और भी बहुत सारे डायरेक्टरीज होंगे thapa.edu सर्वर पे, तो हमें नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, जिस वेबसाइट पे भी अपना ट्रिक दिखाने वाला हूँ, उस पर मैं इस डायरेक्टरी के नाम को क्या करना है, ब्रूट फोर्स करना है। नेम्स सारे ब्रूट फोर्स होंगे, मतलब वो डिफरेंट नेम्स ट्राई करेगा, जो भी अवेलेबल, जो भी सही होगा डायरेक्टरी नेम वो हमें बताएगा, ठीक है। तो हमें दो चीज़ चाहिए एक्चुअली, डायरेक्टरी का नेम और वो ओपन होना चाहिए, ना कि ऐसा ना हो कि पेजेस की तरह हो। पेजेस ओपन नहीं हो रहा ना हमारे में, थापर में, तो पेजेस की तरह नहीं चाहिए अपने को स्टूडेंट्स ऐसा चाहिए जो ओपन हो, ठीक है। अब मैं दिखाऊं ट्रिक, ठीक है। तो ये एक वेबसाइट है, एक्चुअली ये लाइव वेबसाइट है, और मेरे फ्रेंड ने बोला कि यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आई विल शो यू। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबको दिख रहा है, यहाँ पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन का है, और यहाँ पे कुछ फाइल्स अपलोड करने के लिए बोला है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें, इसको इस पर रजिस्टर करना होगा, तो ये सारी चीज़ें चाहिए तुमको फिल करने के। तो एक मेरे फ्रेंड ने बोला कि क्या ये मतलब ये वेबसाइट सेफ़ है क्या, अगर मैं इस पर अपने डाटा दूँ तो मैंने फिर ये अटैक इस पर यूज़ करा था, ठीक है। अटैक का नाम है डायरेक्टरी बस्टर, ठीक है। मैं डायरेक्टरीज को बस्ट करने वाला हूँ, बस्ट इन द सेंस ब्रूट फोर्स। सो मैं टर्मिनल पे जाऊँगा, और ये डायरेक्टरी बस्टर मैंने, सबको दिख रहा होगा, डायरेक्टरी बस्टर ये टूल है, ये मैंने इस पर यूज़ करा है इस वेबसाइट पे, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, फाइल फाउंड, और यहाँ पे आ रहा है /login_here.php, और ये कोड है 200। तो एक्चुअली क्या है, ये बता रहा है कि कोई फाइल मिली है -here.php जिसका कोड 200 है। तो 200 कोड हमें क्या बता रहा है एक्चुअली, तो स्टेटस चेक करोगे तो सक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज को ये शो करता है 200 से लेके 299 तक, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 2। तो जो भी हमें 200 वाले कोड होंगे वो हमारे कोड होंगे एक्चुअली। वापस इस पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे लिख रहा है डायरेक्टरी dir फाउंड, dir में डायरेक्टरी और फोल्डर। तो यहाँ पे हमें /js नाम का फोल्डर मिला। एक बार मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इसको ओपन कैसे करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपने को /js। तो मैं वेबसाइट पे /js, इंडेक्स ऑफ /js, ये इस वेबसाइट की /js वाली डायरेक्टरी है जो आपको डायरेक्ट लिंक से नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑफिशियल जो मैंने ओपन करा था पेज, वहाँ से आप सोचोगे कि JS वाला फोल्डर ओपन हो जाए, तो आप नहीं कर सकते अनलेस अनटिल आप लिंक में इसको /js नहीं करते हो, ओके। और अबाउट us.php ये तो आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। इंडेक्स /images एक ये भी है, डायरेक्टरी फॉर्म /images 200। सो अगर आप /images, तो यहाँ पे एरो एनिमल ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई भी फोल्डर एनिमल कुछ भी आ रहा है, ठीक है। ये सारे इमेजेस है जो वेबसाइट में यूज़ कर रहे हैं, पर अभी भी मेरे काम का चीज़ नहीं मिला। जो रजिस्ट्रेशन वाली चीज़ें थी वो मुझे नहीं मिली अभी भी, लेकिन
मैंने इसमें बहुत सारे फाइल फाउंड और डायरेक्टरी फाउंड्स आपको इस टूल के थ्रू मिल जाएंगे, आपको सारे ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या किया इस टूल ने, इसने सारे नेम्स को, जैसे स्टूडेंट जैसे नेम को इसने ब्रूट फोर्स करके ट्राई करा कि ये क्या डायरेक्टरी सच में है, क्या हमें उसका 200 वाला स्टेटस मिल रहा है। अगर 200 वाला स्टेटस मिल रहा है तो वो हमें यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। तो मैं पूरा आपको हैक में दिखाता हूँ, सिर्फ मैं इतना बताता हूँ कि /image जब मैंने देखा, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, चीज़ें बदल गई। आधार कार्ड .jpg संजीव 780 इमेजेस चिंतापान, क्या 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 है। मैं आपको एक ओपन करके दिखाता हूँ। ये इट्स अ एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कैंडिडेट। यहाँ पे ये आप देख रहे हो कितनी बड़ी फाइल है, मतलब कितना ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन इससे मिल गया और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा। एक्चुअली मैंने बस डायरेक्टरी फर्स्ट करा है, मीन्स डायरेक्टरीज को ब्रूट फोर्स करके चेक करा कि सर्वर पे कौन कौन से डायरेक्टरीज हैं, मीन्स कौन कौन से फोल्डर हैं, और उसमें से कौन कौन से फोल्डर उन्होंने बहुत ही गंदे तरीके से सेटअप करें हैं फोल्डर्स को। मतलब फोल्डर्स के परमिशन ऐसे हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी एडमिन राइट, बिना किसी राइट्स के, मतलब ये सबको दे रखा है राइट, ठीक है। एक्सेस राइट सबको दे रखा है यहाँ पे। मैं कुछ और भी दिखाता हूँ आपको। TDU गोरखपुर देखा, सी, सो एक्चुअली इट्स अ लाइव वेबसाइट। यहाँ पे तो मैंने कुछ ज़्यादा हैक भी नहीं करा, ठीक है। और इसमें आप अभी और भी बहुत सारे फाइल और फोल्डर्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, जैसे /CSS, ये आपको आप इस वेबसाइट के फोल्डर्स दिखा देगा, फाइल्स दिखा देंगे। बूटस्ट्रैप, करोजल, ये सब सारी चीज़ें जो वेब डेवलपर होगा उसे समझ में आती होगी। एक्चुअली मैं नहीं, तो मुझे भी नहीं समझ में आती। तो सो एक्चुअली दिस इज़ द हैक विच आई वांट टू शो यू। तो अपने को क्या मिला, अ टन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस पे आधार कार्ड है, इस पे पता नहीं कितने कितने तरीके के डॉक्यूमेंट्स हैं जो कैंडिडेट ने डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये था मेरा हैक। मैं अपना स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। जिसको ना कुछ समझ में आया वो फिर से पूछ सकता है कुछ भी। भैया हाँ, ये आरोग्य सेतु भी तब इसका तो हैक हो जाएगा, मैंने उसमें से भी डेटा निकल जाएगा अगर वो वल्नरेबल हुआ तो। इसमें क्या था, इन्होंने अपना वेबसाइट काफ़ी घटिया तरीके से सेटअप कर रखा था। सारी चीज़ें, एक्सेस राइट सब, मतलब व्यू राइट सबको थी, सब कोई एक्सेस कर सकता था वो सारी फोल्डर्स जो नहीं करनी चाहिए। भैया मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि कोई बेंगलोर के थे भैया, वो हैक करके दिखाए थे 2-3 दिन में कि हैक हो सकता है आरोग्य सेतु भी। उसके बाद भी इसको कंपलसरी कर दिए हैं गवर्नमेंट। हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं एक्चुअली है। जो आरोग्य सेतु वाली न्यूज है वो एक्चुअली में आरोग्य सेतु हैक नहीं हुई थी। उस बंदे ने आरोग्य सेतु का सोर्स कोड वगैरह ओपन करके तो मतलब उसको बाईपास कर दिया था ओटीपी को उसके। इट वाज नॉट एक्चुअली हैकेबल कि उसका डाटा निकल रहा था। ही वाज जस्ट एबल टू साइन इन टू द ऐप विदाउट यूजिंग ओटीपी। Basically, it was not directory. This type of hack is not related to that. It was a different hack. The person you are talking about, that the Bangalore-based person who hacked Arogyas Setu, right? Yes. It was actually a news which was made very hype. Like उसकी बहुत ज़्यादा hype हो गई थी, तो उस news के बारे में अच्छे से research पहले करो। मतलब वो as such directly hack नहीं थी कि उसने अब सिर्फ bypass करी। सर सर Yes, आर्थिक। सर अगर इस मेथड को थोड़ा एडवांस में करते हैं तो फिर क्या हम बैंक की वेबसाइट को भी बाईपास कर सकते हैं? भाई अगर इतनी आसानी से होता तो रोज बैंकों के पैसे चोरी हो रहे होते। नहीं सर, मतलब एडवांस में करते हैं, बहुत एडवांस में करते हैं। जितने एडवांस, सुनो, इसमें एडवांस तुम क्या कर सकते हो? यू हैव एनी आइडिया? मतलब इसमें एडवांस कुछ और कर नहीं सकते। ये सिर्फ बेसिक एक ट्रिक है जिससे हम पता लगाते हैं कि
कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, जिससे अगर हम दूसरे मीन्स से अगर हम इनके सिस्टम में अगर घुस जाए तो हम ये आपकी आवाज अटक रही है। भैया ये एटीएम कार्ड का डुप्लीकेसी कैसे होता है? मतलब कि बहुत सारा न्यूज आता है कि डुप्लीकेट करके पूरा पैसा निकाल लेते हैं। देखो ये मतलब ऐसा इतने डाउट्स हम यहाँ पे ऐसे ट्रिक्स के सारे बताएंगे नहीं। पहली बात है लाइव स्ट्रीम हो रही है तो इतने डाउट्स हम ऐसे लेंगे नहीं। अगर किसी को ऐसे डाउट्स पूछने हैं तो हम किसी और दिन एक एलयूजी की जूम मीटिंग रख लेंगे, वर्कशॉप रख लेंगे प्रतीक भैया साथ, उसमें आप सब ज्वाइन करके पूछ सकते हो। ओके, एक लास्ट चीज़ है, मैं एक क्वेश्चन करने वाला हूँ अभी, उसका आंसर जो भी देगा फर्स्ट 2 पार्टिसिपेंट्स, या फिर थ्रू चैट या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो अगर आप फेसबुक या यूट्यूब पे हो। अगर आप उसका आंसर करेक्टली देते हो तो मैंने एक्चुअली में थापर के 100 to 200 डिवाइसेस मैंने अपने राइट्स में कर रखे हैं, मतलब मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, उसके एडमिन राइट्स है मेरे पास, मैं उसके साथ वो शेयर करूँगा। जब भी तुम थापर जाओगे तुम्हारे पे ऑलरेडी कैमरे का एक्सेस रहेगा, तुम्हारे पे ऑलरेडी वो अपना स्विच का एक्सेस होगा या फिर प्रोजेक्टर के एक्सेस होंगे। अब तुम कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी बैठे हुए अपने रूम में बैठे रहोगे, तुम कहीं भी देख सकते हो कि क्या चल रहा है, कोई भी कैमरा अपना चला सकते हो या फिर तुम किसी भी क्लास का प्रोजेक्टर बंद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने रख रखी, मतलब मेरे पास है एडमिन राइट्स उसके। थ्रू हैक मैंने उसको लिया था, पर मैं ऐसे एज अ गिव अवे दे रहा हूँ तुम लोग को, अगर तुमने ये आंसर सही बताया तो। ठीक है, रेडी हो सारे? यस। ठीक है, तो क्वेश्चन सुनो। और मैं सिर्फ 15 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स के बाद आंसर्स नहीं लूँगा, ठीक है? क्वेश्चन बोलने के 15 या 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स के ऊपर मैं आंसर नहीं लूँगा, ठीक है? सारे रेडी रहो अपने चैट्स पे, और फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो तो कमेंट्स पे। सही है? तो क्वेश्चन सुनो। अगर तुमने मिस्टर रोबोट देखा होगा तो मिस्टर रोबोट एक्चुअली काइंड ऑफ हैकिंग सीरीज, सो ये एक टीवी सीरीज़ है। अगर तुमने उसको देखा है तो तुम आंसर कर लेना। मिस्टर रोबोट में उसने बहुत सारे ट्रिक्स यूज़ करे हैं, मतलब जैसे अभी DNS स्पूफिंग हुआ ना, तो वैसा बहुत सारा यूज़ करा है। तो तुम्हें किसी भी एक ट्रिक का नाम तुम्हें बताना है, किसी भी एक हैक का नाम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, स्टार्ट कर दो। एक बार रिपीट करना है। मिस्टर रोबोट में यूज हुए किसी भी हैक का नाम बताना है। गूगल करने में ज़्यादा टाइम लोगे तुम लोग। सोशल इंजीनियरिंग। लिख दो, ग्रुप पे अपना नाम बता दो। Time is up. No new entries now. प्रतीक भैया आप चार्ट में देख लीजिए जो भी आपको वैलिड लग रहा है सारे के सारे, और उसमें से आप चूज करिए जो करेक्ट है। हाँ, DDoS सही है, SQL इंजेक्शन सही है, डीऑथेंटिकेशन अटैक सही है। सबसे पहले 633 पे आया था दीपेश मोहंता का DDoS अटैक। तो मेरे ख्याल से सबको दिख रहा है। उसके बाद 633 पे दोबारा पीयूष शर्मा का आया था एक्सप्लॉइट डाटाबेस। तो ये भैया सही है कि नहीं? कहाँ पे आया था? 630 जूम की चैट में 6:33 PM एक्सप्लॉइट डाटाबेस। ना एक्सप्लॉइट डाटाबेस ये तो मैं भी बोल देता, कोई भी बोल देता। मुझे स्पेसिफिक अटैक चाहिए था, स्पेसिफिक अटैक जैसे DDoS अटैक। आर्यमन कालिया सोशल इंजीनियरिंग 6:33 PM चलेगा, पर सोशल इंजीनियरिंग में कौन सा किया था ये बताता तो ज्यादा बेटर है। चलो, तो विकिपीडिया पेज बनाया था सर उन्होंने एक कंपनी में एक एम्प्लॉय का दिखाने के लिए उस कि वो अटैक का नाम क्या बोलते हैं भाई, ये बताओ। वो नहीं पता सर, तो सोशल इंजीनियरिंग करी थी इतना याद है। ओके, सोशल इंजीनियरिंग के अंदर भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं, वो बताने थे। सॉरी शिवांश जनेजा, सॉरी पीयूष आर्यमान कालिया, सॉरी। ओके, नेक्स्ट पर्सन शिवांश जनेजा डायरेक्टरी/पाथ ट्रेवर्सल। एक्चुअली मुझे याद नहीं है, तुमने शायद मेरा ही ट्रिक का नाम लिख दिया है, पर मुझे ये याद नहीं है एक्चुअली डायरेक्टरी/पाथ ट्रेवर्सल। फिर भी मैं तुम्हें
कुछ ना कुछ तो दे दूंगा। इसका भी नाम लिख लो, शिवांशु नीलम। Okay, first two are Okay. Diptesh Diptesh. Mohata and Shivash Taneja. हमें Yes. Instagram पे DM कर देना यार, अपनी अपनी रिस्पेक्टिव Instagram ID से। फॉलो कर लेना, इसके ऊपर LUGTIIT के नाम से पेज है, वहाँ पर आ सकते, DM कर देना। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हो। ओके, DI और बस्टर टूल यूज करने के लिए कितना टाइम लगता है? लाइक हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर इट टू ब्रूट फोर्स इट? डिपेंड्स, लाइक अगर तुमने खुद का अगर वर्ड लिस्ट बना रखा है तो तुम्हारे वर्ड लिस्ट पे डिपेंड करता है। अदरवाइज अगर तुमने फुल स्क्रैच से अगर अटैक यूज़ करा है, टोटली ब्रूट फोर्स, जिसमें तुमने कुछ भी नहीं दिया, कोई वर्ड लिस्ट नहीं दिया, वो सारे खुद वर्ड्स बनाता है और खुद ट्राई करता है, then it will take days. So for the example you had shown, how much time had it taken? आप कुछ word list use किए थे क्या? नहीं, मैंने कोई वर्ड लिस्ट नहीं यूज़ करा था। मैंने एक डायरेक्टरी बस्टर एक्चुअली यूज़ नहीं करा था, मैंने एक दूसरा टूल यूज़ करा था जिसमें काफ़ी लिमिटेड वर्ड लिस्ट ऑलरेडी स्टोर्ड है बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसने एक्चुअली हाफ एन आवर लिया था। Alright. तो आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए और इस हैक के लिए डाउट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि Sir? इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक होनी नहीं चाहिए। Sir, can I ask something? Is it related to hack? Yes, sir, the previous hack which Prateek sir did right now. Okay, just last question. Sir, just I wanted to ask that when you did this thing, so did the website, I mean the administrator or something, got a sort of report also that someone tried to, I mean, hack the information or something like that? Like, I mean, through security purposes, if that thing was reported to someone? मतलब तुम अगर उन्हें ये बात पता होती कि उनका डाटा एक्सेस हो सकता है तो वो क्यों ऐसे रखते? No, I mean, as you gave an example ना, that के banks को अगर पता होता है इससे सारे पैसे हो जाते हैं, so it's like that के मतलब अगर उनको कुछ report as a sort of मिलती है precautionary purposes के लिए that someone is trying to hack or हाँ, अगर तुमने डायरेक्टरी बस्टर यूज़ करा है तो एक्चुअली उनके पास लॉग फाइल में तुम्हारे IP एड्रेसेस वगैरह सारी कुछ चीज़ें चली जाती हैं और वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती हैं कि तुमने कौन से डायरेक्टरी के लिए एक्सेस लिया है। that's तो उनके लॉग फाइल में सब कुछ स्टोर okay. Thank you so much. लेयर कोई बाईपास कर सकते हैं ऐसे? क्या चीज? सिक्योर सॉकेट लेयर कोई बाईपास कर सकते हैं ऐसे? एक्चुअली वी आर नॉट बाईपासिंग एनीथिंग। मुझे तुम्हारा क्वेश्चन एक्चुअली समझ नहीं आया, तुम क्या बाईपास करने के लिए कह रहे हो? सिक्योर सॉकेट लेयर होती है ना? हाँ होती है। तो अगर वो लगाई हुई है साइट ने तब भी ये जो आपने किया हाँ, क्योंकि तुम जब ये एक्चुअली एक ऐसा है कि तुम वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, एक्चुअली मैंने सिर्फ वही यूज़ करा, मैंने कोई हैक ही नहीं यूज़ करा यहाँ पे। इट्स लाइक कि आई एम एक्सेसिंग देयर वेबसाइट ओनली। ओके So, Pranjal, let's continue to quiz. Okay, sure. Diptesh just PM'd me on Discord. Diptesh, you can just right away message in the LUG server itself. I was just going to write you a message, so I'll just talk to you here only. Just ping it on the LUGTIIT server only. Is it all right? And one thing more, guys, this was to show you what hacking actually is. हमारा कोई मोटिव ये नहीं है कि घर जाके चलो सब कुछ एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दो. So be careful about that because there are many things which you need to consider upon it when you are trying this. So be careful. Right. So एक ethical वाली line होती है, please उसको cross मत करना, ठीक है? तो just be wary of that. Yeah, there's just a little boundary between ethical and unethical. Because अगर ये खराब हुआ तो उसके consequences काफी गंदे होते हैं. Yes, so be cautious about that. जी भैया, मैंने करा है उससे भी मत यूज करना क्योंकि वो एक्चुअली अनएथिकल है. So भैया was just showing you कि हैकिंग होती क्या है. If you need to learn आप क्या क्या कर सकते हैं, but don't cross the line because उस line में बहुत little difference होता है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए. Because ethical and unethical
बहुत दूर नहीं है कि हाँ भाई बहुत कुछ कर लिया फिर भी एथिकल है, ऐसे नहीं है. सो बस अपनी एक बाउंड्री मेंटेन रखना, एल्स डू व्हाटएवर यू वांट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्विज. Okay, cool. We can have the quiz right now. Okay, sure. So we all have prepared a quiz for you, and the people who will be answering that like the first time will be given a state entry to the PIs. So get ready for it. Yeah. Just go to the site minty.com. It's in the chat box. Yes, people are entering. Great. Head over to the chat box, guys. If you cannot, like, I'll just post it on Facebook as well. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sure. Yes. Who's it? Yeah, this is she. Sir, do we have to mention our name along with our application number, or just we have to mention? It would be great if you can just enter your application number, just in case we have any confusion. Just your application number. Yeah, you can do that. Okay. Thank you. And please enter valid names, because if you win, your name should not be something that we can't or be able to recognize it. I'll post it on Discord as well. How many are in till now? 47. Is there anyone from here who wants to enter the quiz and hasn't yet entered the quiz? Just let me know. There are 72 participants here right now. Yes, I think we should wait. 20 more people can join. Yeah, actually number is increasing, so I think people are joining. Guys, please join fast, because we don't want people to wait and get bored. Just 2-3 more minutes and we'll start. We'll start at 6:45. Is that cool? Yeah. At least we want all people in the Zoom meeting to at least join. Yeah. How many participants are there in the quiz? 60 actually, till now. Great. Guys, Anyone having issues joining, you can type in the chat. Yeah, or unmute yourself. It's okay. We'll help you sort it out. We'll wait for you. Make sure जब भी आप क्विज दे रहे हो टाइम मैटर करेगा. So be as fast as you can. Okay. I think 45 पे start करना सही रहेगा, because the number is static now. Yeah. Others are coming and going. चल कर दे भाई start. Let's start with it. Okay.
Time is up, guys, for the first question. So I think 29 of 50% only answered the right answer. Great. Okay, so next question. We have Everyone is on the same page. So it Metal. was सबका बराबर. so it was very close competition between Metal, Who Am I? Yeah. I hope Good other game, ones guys. also. Yeah, Thanks. so we are moving on to next question. Look Next at your question. screen, guys. Yeah. Get ready for it. So here comes the next question. Question. Oh. Oh, Nice. 36 people. I hope everyone knows that MX Linux is it. It's not Ubuntu. Yeah, that's a one thing a lot of people don't know actually, and we mostly consider that Ubuntu is the one Linux distro that's most popular. But yeah, let's see the leaderboard. Okay, who am Oh, I? boards have changed. No, this is changed. Fastest प्रांजल है. Arora. Thank you, प्रांजल everyone. ठोक रहे Thank you, हैं. thank you, सारे everyone. प्रांजल Thank you. ठोक रहे हैं आज तो. Thank you, everyone. So moving on to next question, guys. So I'm going to start the countdown. Please look at your screens. So the question is, which hacker group hacked Sony Pictures in 2014? So see your options and answer. Oh, Okay. quite a good response. 31 of them. Nice. Many people knew the answer, I suppose. Okay, so Pranjal So, is still on top. Still at the yeah, top. Pranjal is still at the Go top. team Pranjal. Go team Pranjal. Thank you. So next question, number 4. I am going to start the countdown. I am a pop star who should be kept away from children. Who am I? So it's a fun question, guys. I hope everybody has this general knowledge. Right. Let's see how many of them gives the right answer. Oh. sorry. Oh, Still 16 and 15 nice for response. Elton John. Okay. Anonymous was the fastest. Dr. Evil was the fastest. Anonymous was the first. Dr. कोई Devil. बात नहीं. Dr. Evil. Dr. Evil, the fastest. Nice. Quite a nice name actually. Dr. Evil, Anonymous. So it's the last question of the quiz, guys, and the final one. Hope you इसका आंसर सही से देना तो मतलब काफी अच्छा है और काफी मजेदार आंसर है.
जो फर्स्ट Let's टाइम see है how वो VI में many of जाएगा। them gives the right answer. Okay, let's see. Oh, Guys, answer it fast. Most dangerous computer virus. All the people in the relationship, सबको पता है. Most dangerous virus. Okay, so let's. Oh my Oh god. my God. Approximately 55 people Oh my answered. It was quite a good Quite response. a good response. I would like to know that it was a like bluff or they really knew, like it was just a guess which everyone made it right. It was a good guess. It was a good guess. I also think so. Let's see who made the guess fastest and who is most eager to. Pranjal, why did you do this to me? Okay, so. Okay, Sanya. Sanya. Congratulations, Sanya. And Someone Gaurav from is nowhere. Nice. Sanya. And Gaurav from 2821, he answered this question very fast. Fastest one to answer I love you question. उसको दर्द पता है इस चीज का. Okay. So congratulations, Sanya. And please PM us, like just drop a message on the Discord server if you can. Love is I'm not on Discord. You can Sanya, Instagram. DM us on Instagram. Okay. So thanks for the quiz, guys. It was a nice audience for So quiz now, activity. Moving forward कि यहाँ पे fun हो गया, बहुत कुछ हो गया. So let's discuss कि हम यहाँ पे आज क्यों इकट्ठे हुए थे. So it was basically the orientation, right? So हम ये बोलते हैं कि we are project focused society, we focus on projects. So let's see some of the projects by us. Let me just have my screen share. सर इस सोसाइटी के लिए रिकमेंड प्रोसेस क्या होएगा सर? कैन यू प्लीज टेल? एंड में सब क्लियर करेंगे हम तुम्हें, टेंशन मत लो. एंड में सब तुम्हें बता देंगे, ठीक है? Okay. So starting with the projects, it's just a small clip showcasing our projects till now. Some of our projects actually. So have a look. So I think we should share it again because many of us are saying that they were not able to see it properly. Is there any साउंड भी नहीं आ रही थी. sound was there? Actually, शेयर नहीं करी. कंप्यूटर साउंड ऑन कर दो. share sound. Yes, हाँ. yes. Wait. Wait, guys, just give me a second. So yes, this is the slide once again. Let me feel your love again. 'Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us, and we can stay up all night.
अब मैं क्या करूँ, इस पैकेट को एडिट कर दूँ? So this was our video and if anyone of you wants कि मैं इसको explain करूँ या आपको gist दूँ तो आप मेरे को बता दो. Otherwise this was all of the showcase of our projects कि हमारी कौन कौन सी projects अभी line में चल रहे हैं और कौन कौन से हो चुके हैं. So we'll also discuss about कि यार ये projects क्यों important है, वो सब कुछ भी अभी we'll discuss. It's just that we wanted you to know कि LUG is a society that has been focusing on projects since ever, and the projects you make actually go live. So yeah, these were a few of our projects that the team has made recently, and so if anyone has any doubt like regarding anything, तुमने एक नाम पढ़ा होगा Atena की facial recognition based attendance system. तो although मैं जानता तुम्हारी जिंदगी हम लोग परेशान कर रहे हैं कि तुम्हें proxy लगनी मुश्किल हो जाएगी, पर yeah, that is one project that is actually in development, और जो अगर कोरोना नहीं होता तो शायद थापर में अभी implemented भी होता. तो इस तरीके से तुम्हें कोई भी doubts है regarding the projects, feel free to ask them. basically first year की लग चुकी होती है अगर Atena हो चुका होता. ठीक है. So anyone, any doubts? Now we are open for doubts. Anything you want to ask about us, about our society, you can ask us. दीदी I think एक बार बता देते हैं क्योंकि सबको I think पता नहीं होता कि यार projects क्यों करना है ना? एक बार हल्का उसके बारे में discuss कर लेते हैं. और एक बार यार वो लास्ट में PI के लिए अगर किसी और को मौका चाहिए हो तो उसके लिए भी एक वो था ना, हाँ, तो वो भी याद रखना कि लास्ट में वो बताना कि लास्ट में करते हैं अभी. Okay, yeah. ठीक है, वो चाह दीदी संभालेंगे. तो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ कि क्या सीन क्या है यार. तो चलो इसी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो डायरेक्टली उसमें ही जाते हैं. मैं तुम्हें अपने बताता हूँ कि ठीक है, मैं जब कॉलेज में आया था तो मुझे इतनी कुछ खास नॉलेज नहीं थी कोडिंग के बारे में. ठीक है, बोर्ड्स के बाद छुट्टियां होती है ना, उसके बाद थोड़ी बहुत सीख के आया था. पता नहीं सोचा था कि कितना बड़ा कोडर हो गया हूँ मैं, पर इधर कॉलेज में आया तो भाई कुछ भी चल रहा है. मतलब कि C++ भाई कोई वेबसाइट बना रहा है, कुछ भी चल रहा है. ठीक है, आया सोसाइटीज के इवेंट्स लगाए, समझ ही नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है. क्रक्स बेसिकली ये निकल रहा था कि सब सोसाइटीज इवेंट्स करा रही हैं. ठीक है, पर उसके बाद जो डाउट था ना वो ये था यार कि इवेंट क्यों, मुझे क्या गेन हो रहा है इससे, क्यों कराऊं मैं इवेंट से. ठीक है, और सबका फोकस इवेंट्स पे क्यों है इधर. वेल लेट मी जस्ट टेल यू कि LUG का फोकस जो है वो डिफरेंट है सभी से. इंस्टेड ऑफ इवेंट्स वी फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स. At LUG we focus on ourselves instead of working like पूरा साल काम करते हैं events बनाने की जगह. We invest that time in making the projects we get from here, like from the society, from the projects we get from the society, and we build our resumes and CVs from them. We have events too. ठीक है, हम लोग hackathon conduct कराते हैं, हमने CTF भी conduct कराई है, हमारी workshops होती हैं. ऐसा नहीं हम events नहीं कराते, पर हमारा जो focus रहता है वो projects पर रहता है. ठीक है, बेसिकली तुम पढ़ो जहां से भी तुमको पढ़ना है, बेसिक्स करो, पर आगे की जो लर्निंग का काम है, आगे का जो एप्लीकेशन का काम है, तुम वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू करो. तुम्हें प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, तुम उन पे काम करोगे, तुम्हें डाउट्स आएंगे, तुम अपने आप उन्हें सॉल्व करोगे अपने आप और अपनी टीम के साथ जो तुम्हारे साथ उस पर काम कर रही होगी. तो ये जो चीज होती है ना कि तुम पूरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ये पूरा का पूरा तुम्हें एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है जो कि एक्चुअली एक वर्क एक्सपीरियंस की तरह काउंट होता है. जो भी तुम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो वो तुम्हारे लाइव जाने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि तुमने प्रोजेक्ट बना के गिटहब पे डाल दिया, तुम्हारे ऑनलाइन होने वाले हैं. तो ये सब चीजें तुम्हारे रिज्यूमे, तुम्हारी CV, तुम्हारी प्रोफाइल पे एड अप करती है सारी की सारी चीजें. ठीक है, तो चलो यार वो भी एक चीज हो गया कि हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि हम क्या काम कर रहे हैं, ये सब कुछ है. ऐसा नहीं है कि सारा दिन बैठ के लैपटॉप में घुसे रहते हैं यार. ठीक है, बहुत फन करते हैं. ठीक है, इंजीनियर ही है ना इन द एंड, मजे तो करना पड़ता ही हम लोगों को. ठीक है, हम बहुत काम करते हैं, हम पार्टी भी उतनी ज्यादा करते हैं. ठीक है, यू विल ऑफ्टन फाइंड योरसेल्व्स चिलिंग अराउंड विद अस कि इवेंट्स के बाद या फिर सोसाइटी मीटअप्स के बाद तुम हम लोगों के साथ ही चिल मार रहे होगे. ठीक है, हर इवेंट के बाद हमारी पार्टीज होती हैं जिसमें हम सारे के सारे अपना जितना भी काम करा होता है ना, उसकी सारी खुंदक, जितना भी मेहनत निकाली होती है, वो सारी की सारी पार्टी में जाके हम ब्लो ऑफ कर देते हैं. तो आई अग्री कि अभी एक थोड़ी सी शाइनेस कोफिशिएंट होता है सीनियर जूनियर के बीच में यार कि अभी तो जानते भी नहीं है, पर एक बार थोड़ा खुल जाओगे ना तो उसके बाद सारी शाइनेस खत्म हो जाएगी. तो इट इज तो वही चीज है. तो चिल है सारा का सारा सीन, कोई दिक्कत नहीं है. अब आई थिंक तुम्हें जब थोड़ा पता है कि हाँ यार प्रोजेक्ट्स क्या है और तुम्हें क्यों करना है, इफ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स रिगार्डिंग कि क्या चीजें तुम उठाओगे, क्या प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो फील फ्री टू आस्क देम. या एनीवन हु हैज एनी डाउट.
प्रांजल एक बारी रिक्रूटमेंट का बता दो, ठीक है? रिक्रूटमेंट्स का, हाँ इसके बाद बता देता हूँ। डाउट सेशन के बाद मैं तुम्हें पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट्स का बता दूंगा। डाउट सेशन अभी अपना सेशन जो है वो एंड पर ही है, ठीक है? कि तुम्हें कुछ भी डाउट्स हो, जरूरी नहीं है कि सोसाइटी से रिलेटेड हो, कोई कॉलेज लाइफ से रिलेटेड भी कुछ थोड़ा बहुत हो तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया प्रांजल, there is a doubt, my classes will get affected by the society or not? Not at all. जितनी भी हमारे इवेंट्स होने वाले हैं उसका सबका टाइमिंग डिसाइड वगैरह आप सभी के साथ होने वाला है। हम सब टीम एज मीटिंग बैठेगी, हम डिसाइड करेंगे कि हाँ यार अभी हमें मीटिंग चाहिए, और इस तरीके से जो भी एक टाइम सबको सूटेबल रहेगा उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। तो तुम्हारा कॉलेज को कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। The next doubt is, अगर कोई नहीं आ पाया सोसाइटी में मगर सीखना चाहता है तो क्या वो सीखने आ सकता है? यार ऑफ कोर्स नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता भाग। Who's that? कौन था भाई ये? गीता ऊपर। कौन था? Let's just ignore him for a moment. It's all right, just ignore it. Yeah, let's just ignore him for a moment. It's not like that यार, हम सीनियर्स हैं, हम कम्युनिटी जो हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है वो हमने इसीलिए रखी है कि यार जितने भी हम लोग हैं, अगर इवन इफ वी डोंट गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी कैन ऑलवेज प्रमोट द स्पिरिट ऑफ लर्निंग। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस various methods, it's not an issue, we are open to collaboration। और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सोसाइटी में आने के देखो कुछ पर्क्स तो रहेंगे ही, मैं ये मना नहीं करता हूँ, बट हाँ एज कम्युनिटी बिल्डिंग हम तुम्हें सोसाइटी में आने के भी मल्टीपल चांसेस देंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर में भी रिक्रूटमेंट्स होती है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बट हाँ कुछ पर्क्स रहेंगे शायद जिनसे तुम लोग थोड़ा डिवर्ड रहो, बट हाँ लर्निंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस एट एनी टाइम। डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हमने इसी स्पिरिट को प्रमोट करने के लिए बनाई। Cool. The next doubt is, can IEP students join the society? Sure, it's open to everyone who's ready to learn and implement. It's no bars. What will be quiz about? What all will be asked in the quiz? Okay, this was English सीखना नहीं पहले। It's okay. Someone is spamming the server. Please just ignore him. We just request you all, like, we are really sorry. Jayant, don't admit more students. I'm just kicking the imposter and he's getting added again and again. Yeah. Sure. He was the imposter. Yeah. Okay. So, what was the question again? I'm sorry, I just lost track of it. What will be asked in the quizzes? Quiz, yeah. So basically, देखो ये क्वेश्चन मैं बाद में आंसर करता, पर कोई बात नहीं। क्विज एक लॉजिकल और रीजनिंग के बेसिस पर ही होने वाली है, क्योंकि मैं समझता हूँ, हम लोग सब समझते हैं कि यार जो भी कॉलेज में है सब बंदे कोडिंग नहीं करके आते हैं, और कोडिंग के लिए टू बी अ गुड कोडर यू डोंट नो कि जरूरी नहीं है कि तुम्हें बहुत सारी लैंग्वेज आनी चाहिए, तुम्हारा एक लॉजिकल और रीजनिंग पे काम करने वाला दिमाग होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट रिक्वायरमेंट इज, कि तुम्हारे पास बस वो होना चाहिए। ऑफ कोर्स वहां पर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, ऑफ कोर्स जिसको कुछ आता है थोड़ा तो ब्राउनी पॉइंट्स बनता है ना उनके, बट ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने कोडिंग नहीं आती उसका कोई चांस नहीं है सोसाइटी में आने का, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यू हैव एन इक्वली ग्रेट चांस ऑफ गेटिंग इनटू द सोसाइटी। क्विज में टेक्निकल क्वेश्चन का परसेंटेज कम रहेगा, मान लो अगर 10 क्वेश्चन है तो 2 या 3 ही रखने की कोशिश करेंगे हम टेक्निकल क्वेश्चंस, बट देयर विल बी अ फ्यू टेक्निकल क्वेश्चन, बट मेजॉरिटी विल बी लॉजिकल एंड रीजनिंग। Excuse me, sir? Yes, go ahead. Yeah, sir, you said that we will be working on projects. So, like, if we don't have any prior knowledge about like coding, so will you be giving any regular classes on that? मतलब हम लोग को अगर मतलब सीखना है तभी तो हम लोग प्रोजेक्ट में कुछ काम करेंगे, जब तक कुछ आएगा नहीं तो कैसे करेंगे? ऋषि मैं बताता हूँ, देख लर्निंग ना एक ऐसी चीज होती है जो एक बहुत पर्सनल चीज होती है। मतलब देख, एक तो कि कोई बंदा किसी तरीके से पढ़ने में ज्यादा कंफर्टेबल होता है, कोई बंदा किसी चीज में ज्यादा कंफर्टेबल होता है। ऑफ कोर्स अगर कोई एक कलेक्टिवली सबको सीखना होगा तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर जो सीनियर्स हैं, हम लोग हैं, चाह दीदी, जतिन बिहार, राघव, सब लोग हैं, वो डेफिनेटली विल बी एबल टू टेक आवर डाउट्स, विल कंडक्ट अ फ्यू सेशंस जिसमें हमें हेल्प करेंगे स्टार्ट करने में। बट इन द एंड यार लर्निंग एक बहुत पर्सनल चीज है, हर किसी का अपना तरीका होता है, और वैसे ये लर्निंग वाली चीज एक ऐसी चीज है जो हम लोग कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि हाँ यार अगर कुछ सीखना है और ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आई तो ऑफ कोर्स वी कैन होल्ड सच सेशंस एज वेल।
Pranjal, the question is, how are the projects? Are those pre-planned or there is some projects going on right now? आई थिंक इसके बारे में चाहा दीदी जतिन भैरागोविया ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे इफ यू कैन लाइक yes, sure, I would like to explain. तो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. एक्चुअली ऐसा होता है कि जितनी टीम होती है उस हिसाब से प्रोजेक्ट्स होते हैं कि कई बंदों को ML में प्रोजेक्ट्स करना होता है, कईयों को वेब डेवलपमेंट में करना होता है, कईयों को ऐप डेवलपमेंट में करना होता है. तो अलग अलग तरह के होते हैं और कई तो पेड भी होते हैं, लाइक स्टार्टअप्स के साथ कोलैबोरेशंस होती हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई टीम ऐप डेवलपमेंट पे काम कर रही है तो एक ऐप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होता है. जब वो खत्म हो जाता है, बेसिकली MST में बच्चे बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं करते. रीडिंग वीक और MST में बिल्कुल कोई काम नहीं होता. उससे पहले होता है या उससे बाद में होता है. और इवैल्यूएशंस वगैरह टाइम पे भी मिस होता है. तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, कोई ML का, कोई वेब डेवलपमेंट का, कोई ऐप डेवलपमेंट का. तो आई होप आई एम एबल टू क्लियर और यू कैन आस्क अगेन. बाकी अगर किसी को कोई नई टेक्नोलॉजी आती है या किसी को ब्लॉकचेन या फिर किसी को हार्डवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके लिए भी अपने पास हैं, मतलब सीनियर्स हैं जो हार्डवेयर के लिए भी हैं. और अगर किसी को ब्लॉकचेन करनी है तो मतलब उसके लिए भी बहुत बंदे जो तुम्हारी हेल्प भी कर देंगे और प्रोजेक्ट्स के लिए वो बेस मिल जाएगा कि तुम उस टेक्नोलॉजी को ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाओ सीखते हुए. मतलब कुछ भी सीखना यार, गाइडेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी. देख, आई बीइंग अ सेकंड ईयर आई कैन टेल यू कि मेरे को अपने साथ के पीयर्स से, अपने सीनियर से जो थर्ड ईयर में सब लोग हैं, उनसे गाइडेंस की कभी प्रॉब्लम नहीं आई है. मैं कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मैंने पता नहीं कितने घंटे भी बात करी है सब लोगों सीनियर से. तो गाइडेंस की कोई इशू नहीं आने वाला है, प्रोजेक्ट्स का कोई इशू नहीं आने वाला है. जो भी तुम्हें टेक्नोलॉजी सीखनी है, LUG has projects for most of them, so कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला. और हम अपने खुद के भी प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा. Is having Linux compulsory for this society? We prefer to work on Linux कि as we said यार, Linux एक बहुत, मतलब आपको सोसाइटी में एंटर करने के लिए प्री रिक्विजिट नहीं है. सीख जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. तुम, हर किसी को नहीं आता Linux, ठीक है, तो सीख जाएंगे, हम लोग ही सिखा देंगे. करते करते अपने आप सीख जाओगे. कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. बट हाँ, प्रेफर काम करना हम प्रेफर लिनक्स में करते हैं. लिनक्स या फिर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम बेसिकली. बट अगर किसी को लिनक्स पे काम नहीं करना तो ये है कि एक बार वो बस सीख ले, क्योंकि फ्यूचर में बहुत यूज होने वाली. एक बार सीख लो, उसके बाद जिस पे मर्जी काम करो, फिर क्या ही होगा. Exactly. Yes, well enough. How should we prepare ourselves for the quiz? What are the chances to get selected? How many students will be recruited? So that's the question. Okay, तो that is a very relative question कि मतलब कितने लोग सेलेक्ट होंगे यार. वो सब चीजें डिपेंड करती हैं काफी फैक्टर्स पे. अभी आई थिंक तुम लोग बस क्विज पे फोकस करो, अपना बेस्ट शॉट ट्राई करो, और that is what I can say for now. I would like to add up कि जितने बच्चे कैपेबल होंगे या जितने बच्चे क्विज क्लियर कर जाएंगे, they all will be selected. There is no bar at it कि हमने 10 लेने हैं, हमने 12 लेने हैं. जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया रखा जाएगा, जो भी पास कर जाएगा, they are most welcome. They will be selected for the personal interview or directly from the quiz? For the personal interviews, basically दीदी wanted to say कि जो भी एलिजिबल होगा उसको एंट्री मिलेगा, ठीक है. ऐसा कोई नंबर से बार्ड नहीं है हम लोग कि हमने 20 ही लेने हैं, तो जो 21वीं रैंक वाला है फिर 25वीं रैंक वाला होगा, चाहे वो एलिजिबल है तो हम उन्हें मना कर देंगे. ऐसा नहीं है. जो भी लोग एलिजिबल होंगे उसको सोसाइटी में आने का चांस मिलेगा. उसमें कोई. Yes. Sir. Okay, is there any question? You can ask in the chat or unmute yourself. Sir. Yes, Aditya. Yeah, sir, I've not started much with Linux, so I wanted some guidance, like introduction to the Linux and how should I operate it on my Windows, like that only. So how can I learn it from you? Okay, आदित्य, what we can do is कि ये वैसे क्वेश्चन लिनक्स सीखना कैसे है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो, पर हाँ, टू गेटिंग स्टार्टेड विद लिनक्स के लिए एक काम करता हूँ. मैं जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहाँ पर एक रिसोर्सेज का चैनल है, वहाँ पर कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट डाल देता हूँ जो कि बिल्कुल स्क्रैच से तुम्हें हेल्प करेंगी कि तुम्हें लिनक्स स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है. फॉर ऑल द पीपल जिनको लिनक्स से इंट्रोडक्शन चाहिए या फिर कुछ भी चाहिए, टू हेल्प यू गेट स्टार्टेड, हमें कुछ यूट्यूब की प्लेलिस्ट या फिर रिसोर्सेज शेयर कर देंगे जिसके थ्रू आप स्टार्ट कर पाओ लिनक्स. सही है. बाकी जो लोग और बाकी जो लोग सोसाइटी में रिक्रूट हो जाएंगे उसके बाद, मतलब जैसे भी कोरोना का सीन रहता है उसके बाद या तो ऑफलाइन या फिर एक ऑनलाइन एक वर्कशॉप रखेंगे लिनक्स के लिए. तुम्हें बेसिक कमांड्स बताई जाएंगे लिनक्स के और लिनक्स का प्रॉपर यूज कैसे करना है, वो सब इंस्टॉलेशन भी करा देंगे साथ साथ में अगर किसी से ना हुई तो.
When is the Okay. quiz? When is the quiz? Quiz is on Tuesday, that is 13. इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी इस डाउट सेशन के बारे में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अभी समझा देता हूँ. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो डाउट्स हैं वो उसके लिए रख लेते हैं. अभी कुछ इससे पहले कुछ डाउट्स हैं तो फील फ्री टू आस्क. अगर भैया कोई भी डाउट होता है तो हम लोग आपको डिस्कॉर्ड सर्वर पे कर सकते हैं. हाँ, इट वुड बी बेटर कि डीएम की जगह तुम सर्वर पे डायरेक्टली पूछ लो, क्योंकि उस टाइम पे ये होता है कि जो भी ऑनलाइन होगा ना वो सीधा तुम्हें आंसर कर देगा. विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर इट एज सून एज पॉसिबल. मैं मतलब जनरल पे ही करते हैं हम लोग. हाँ, जनरल पे कर लो. सर डिस्कॉर्ड पे ही मतलब ग्रुप में ही होना चाहिए ताकि अगर दूसरे मेंबर्स का भी डाउट हो तो उनसे भी क्लेरिफाई हो. हाँ, बिल्कुल एक एफएक्यू लिस्ट क्रिएट हो जाती है अपने आप की. हाँ बिल्कुल. जनरल डाउट्स हो तो वो सबके हो जाएंगे एक साथ. दैट्स द बेस्ट. डिपेंड करता है, अभी नई रिलीज ये नहीं बता सकते अभी तुम सबको, बट डुएबल क्विज होगी, तुम्हें एम्पल टाइम मिलेगा करने के लिए. डोंट वरी अबाउट दैट. तुम बस कितने टाइम ड्यूरेशन क्या होगी यार ये डिटेल अभी Maximum 10 to 15 minutes. You need not to worry about that. Just get prepared for that. कैसी होगी, कहाँ पे होगी, कितने questions होंगे, we'll take everything into account. Don't worry about that. Thank you ma'am. Yeah, Gurdeep Singh, is dual booting to Linux as simple as boot camping to Windows on macOS? Kind of like boot camping के लिए मतलब macOS पे सॉफ्टवेयर आते हैं. dual boot आपको खुद करना पड़ता है पूरा का पूरा, पर हाँ बहुत सिंपल प्रोसेस है ये, ठीक है ना. कि इसमें लिटरली मैं अपना बताऊं तो मतलब बहुत सिंपल प्रोसेस होता है. थोड़ा कॉशियसली चलना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है. सॉफ्टवेयर नहीं होते डुअल बूट करने के लिए, ये एक चीज है. बूट कैंपिंग के लिए जैसे होते हैं पर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं. ओके. For me, now I'm good with it. Yeah, Sastik Janeja has shared his experience. Yeah, that's nice. Okay. So I think if anyone has the doubts, last call रखते हैं, उसके बाद अपन recruitment process explain करते हैं और उसके बाद will wrap up. ठीक है, तुम्हें भी कुछ होगा तो कोई सीन नहीं है. किसी के सोसाइटी के बारे में कोई डाउट्स हो, because it's much of Linux and Linux. हाँ. Sir, please explain the recruitment process. चलो That's last question, I guess. ठीक है. हाँ. ओके. तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है? 2 राउंड होंगे. पहला स्क्रीनिंग राउंड होगा जो कि एक क्विज होगा, और उसके बाद अपना इंटरव्यूज होंगे, पर्सनल इंटरव्यूज होंगे. ठीक है. जैसा कि तुम्हें बता दिया कि क्विज में एक स्क्रीनिंग है, एलिजिबल लोगों को लेंगे. ऐसा कोई हमने नंबर फिक्स नहीं किया हुआ है कि हमने इतने लोग लेना है. एलिजिबल जो भी होगा उसको हम चांस देंगे प्रॉपर एक सोसाइटी में आने का. ठीक है. इंटरव्यू क्विज की कट ऑफ होगी, उसको क्लियर करने वाले लोग पर्सनल इंटरव्यूज में आएंगे. 13 अक्टूबर जो कि अभी कमिंग ट्यूसडे है, परसों को, उस दिन क्विज होगी. टाइमिंग, क्विज के लिंक और अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारा का सारा डिस्कॉर्ड सर्वर और सोशल मीडिया हैंडल्स पे आएगा. इट इज बेटर कि अगर तुम लोग हमें डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर इन्फॉर्मेशन एकदम से कन्वे हो जाती है ऑर्गेनाइज फॉर्म में. बट हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर भी सब जगह पोस्ट होंगी इन्फॉर्मेशन. सो इट्स जस्ट दैट कि स्टे कनेक्टेड विद अस. हम तुम्हें मेल भी करने वाले हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. बट इट इज स्टिल रिकमेंडेड कि तुम हमें डिस्कॉर्ड पर इस तरीके से ज्वाइन कर लो. ठीक है. क्वेश्चंस में यही है, सिलेबस तुम्हें बता ही दिया है कि लॉजिकल और रीजनिंग के बेस पे होने वाला है पूरा का पूरा. टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली होंगे, पर कम होंगे, और उसके बेसिस एक स्मॉल परसेंटेज रहेगी उन क्वेश्चन की. बट मेजर फोकस लॉजिकल और रीजनिंग पर रहने वाला है. और यार किसी को सीधा पीआई में जाना हो और क्विज ना देना हो तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है अपने पास. मतलब एक सिंपल सा, So basically the last option. हाँ लास्ट ऑप्शन यही है कि अगर किसी को क्विज में ना हो पाए या कुछ भी हो तो हमने एक सिंपल सा उसके लिए एक CTF रखा है. किसी को CTF के बारे में पता है? एनीवन? नहीं शायद. काफी लोगों को नहीं पता होगा. आप हाँ, एक्सप्लेन तो करिए. CTF एक सिंपल से मतलब एक कंपटीशन होता है पिको CTF करके, बेसिक लेवल का. उसमें अपने को कैप्चर द फ्लैग होता है. मतलब अपने को कुछ अपने इंजीनियरिंग स्किल्स यूज करके थोड़ा बहुत मतलब सिस्टम के बारे में पता हो, वो सब चीज़ें यूज करके अपने को एक फ्लैग ढूंढना होता है उसमें से. तो हमने एक सेम फ्लैग हमारी वेबसाइट में भी रखा है. अगर किसी को वो मिल जाता है तो हाँ, कैप्चर द फ्लैग. अगर किसी को वो फ्लैग मिल जाता है तो वो सीधा हमें इंस्टाग्राम पे DM कर देगा. जो भी पहला बंदा होगा हमें DM करने वाला, उसको क्विज नहीं देना पड़ेगा, वो सीधा PI के लिए क्वालिफाई कर जाएगा. किसी को कुछ
सर फ्लैग मिलेगा तो शेयर कैसे करेंगे? शेयर वहीं का है कि इंस्टाग्राम पे हमें डीएम कर देना उसको, उस पूरे स्क्रीनशॉट फ्लैग के को। साथ। हाँ स्क्रीनशॉट के अच्छा साथ। तो स्क्रीनशॉट एंड ऑल, ठीक है। हाँ, और वैसे भी ऐसे थोड़ी होगा कि कोई भी बोल देगा कि मेरा हो गया तो हम उसका चेक नहीं करेंगे, सबका चेक करेंगे भाई, ऐसे सबका थोड़ी चेक है। करने वाला है। हाँ, बिना चेक के थोड़ी ऐसे कुछ सीधा जाएगा। Ravjot says, I don't have an Instagram account. You can PM us on the Discord channel also. That's not an issue. But the Like time तुम will like matter. जिस सर्वर पे जहाँ पे भी फर्स्ट होगा उसी को मतलब मिलेगा। yes. Okay, I had a doubt. So I had answered the second question regarding the email STMP server thing. Do I get directly qualified to the PI round? Yes, sure. Okay. Supreet, yeah. You. All right, thank you. एक बार उन सबके नाम बताई दो कि कौन कौन कर गए पीआई के लिए क्वालिफाई। जतिन। First it was Naman. निमेश। Oh, sorry, Nimesh. And second it was Supreet. Yes. और सिर्फ दो ही हुए अब तक, और क्विज में फर्स्ट भी तो आया था। एक क्विज में एक फर्स्ट आया था। सान्या। हाँ तो यार ये 3 बंदे सीधा क्वालिफाई करेंगे, इनको क्विज की जरूरत नहीं है। और I hope Sanya you've messaged on the LUG Discord or any social media handles so that we have a record. Yes, Sanya has actually messaged. It's okay. Great. Also प्रतीक भैया का जो क्विज था उसके भी विनर्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो वो भी सही है। तो आई थिंक दैट क्विज के लिए रिक्रूटमेंट फॉर्म है ना, एक फॉर्म डाला हुआ है अपने साइट पे। हाँ ठीक है। रिक्रूटमेंट तो फॉर्म जिन्होंने भी रिक्रूटमेंट फॉर्म नहीं भरा है वो एक बार भर दो अभी, अपलोड कर दो। जिन्होंने पहले से भरा हुआ है वो ठीक है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है, उनको मेल आ जाएगी क्विज के रिगार्डिंग। और डिस्कॉर्ड पर सोशल मीडिया चैनल्स पर भी पोस्ट होगा, तो इसलिए बस ये है कि तुम कनेक्टेड रहो हम लोगों से ताकि तुमको इन्फॉर्मेशन पे मिस आउट ना। स्वास्तिक जनेजा आस्क्स, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द CTF अगेन? ओके, तो मैं थोड़ा ट्राई कर देता हूँ। CTF या फिर कैप्चर द फ्लैग होता है यार कि हमने ना कुछ फ्लैग्स मींस कुछ भी पर्टिकुलर चीजें होती हैं, एक अलग चीज जो वहां पर नहीं होनी चाहिए उनको हमने छुपाया हुआ होता है, और वो जो फ्लैग्स हैं इस बार हमारी वेबसाइट में हिडन है। तो तुम्हें थोड़ा सर्च करो, थोड़ा गूगल करो, देखो CTF कैसे होता है, क्या करना होता है, और उस तरीके से जाओ हमारी वेबसाइट पे, ट्राई करो ढूंढने की कुछ ऐसी अलग चीजें। वो विजिबल एकदम नहीं होने वाली। अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ वेबसाइट पे जा रहे हैं, तुम्हें कहीं ऊपर कोने में LUG लिखा हुआ दिख रहा है तो वो तुम्हारा फ्लैग है, नहीं, वो फ्लैग नहीं है। वेबसाइट का लिंक भी फ्लोट कर देते हैं अभी दीपक बंसल। एक हिंट देते हैं भाई, उस वेबसाइट पे जितना तुम मतलब हमारे बारे में पढ़ोगे, LUG के बारे में, हमें उतने चांसेस ज्यादा है मिलने के। और अगर किसी को कुछ सैंपल टाइप्स देखना कि वो कैसे करना है तो बता दो, वो दिखा देते हैं, वरना कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। हेल्प हो जाती है हमारी। Do you want a demonstration? Okay. Yeah, sir. Please. Yeah, sure. Okay. चलो मैं फिर एक डेमोंस्ट्रेशन दे देते हैं। हाँ, तुम असली फ्लैग नहीं बता रहे कहाँ पर है। हाँ, असली फ्लैग तो नहीं, बस एक सैंपल सा है। हाँ। मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, वो है। हाँ, तो जैसे स्पीड चेक करने के लिए fast.com पे जाते हो कभी कभी, तो यहाँ गए, यहाँ पे कुछ भी स्पीड आ रही है, फर्क नहीं पड़ता जो भी है। मैं यहाँ पे गया, मैंने इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट टूल है उसको यूज किया। अब सेम चीज मैंने मतलब स्पीड के लिए होता है कि जैसे मैंने पे स्पीड चेंज करने किसी को धोखा देना है कि मेरी आ रही है 300 Mbps या 400 Mbps, जबकि आ तो सिर्फ 8.8 रही है, तो उसके लिए अपन यहाँ से कुछ थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह करके कि यहाँ से हमने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से उसके एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए जिससे वो थोड़ा अलग हो जाए। जैसे 8.8 को कर देते हैं 300। तो सिंपल सी ये एक हिंट टाइप से है कि तुम्हें ऐसे कुछ करने पे मिल सकता है कुछ भी वहाँ पे। तो देखो थोड़ा LUG के बारे में, वहाँ पे कहीं कुछ लिखा होगा उसके बारे में देखो, कहीं पे कुछ इंस्पेक्ट यूज करो, कहीं पे कंसोल, इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, कंसोल सोर्सेज, कुछ भी ट्राई करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तुम्हें मिल ही जाएगा उस पे, और जिसको मिलेगा वो तो सीधा PI में आ ही जाएगा। सर फ्लैग का मतलब क्या होगा? फ्लैग का मतलब भाई ये हुआ मतलब LUG से रिलेटेड, LUG से रिलेटेड, तुम्हारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, वो कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हें दूर से दिख जाएगा अगर तुम उस फाइल के आसपास भी जाओगे। इस वाले केस में वो एक स्ट्रिंग है, हाँ, एक इस केस में स्पेशल वो एक स्ट्रिंग स्ट्रिंग है। है।
हाँ String, और वो String means एक वो sentence, हाँ वो एनकोडेड भी है, तो तुम्हें उस अगर वो स्ट्रिंग मिल भी जाए, तुम्हें उसका मतलब समझना है तो उसको डिकोड करने का ट्राई करना कि वो कौन से मतलब डिकोडर से डिकोड हो सकता है, या फिर कोई बेसिक्स कुछ मेंटल एबिलिटी से भी यूज करके देख लेना कि क्या पता किसी को कुछ आसानी से मिल जाए। और इसका टाइम है हमारे पास 15 तक, शायद हो जाएगा सबसे, 15 अक्टूबर तक। जिस मतलब हो गया तो ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। और मतलब जो जीतेगा उसका नाम हम एलयूजी के अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देंगे, तो प्लीज सब लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना यार। उस पर भी कई बार गिव अवेज हो जाते हैं, लाइक हाँ रात को 2 बजे गिव अवे हुआ और फिर एकदम से पोस्ट डाउन होगी तो फिर ही पता नहीं चलता, तो फॉलो जरूर कर लेना। ऑल्सो रिगार्डिंग इंटरव्यूज की, काफी बच्चों का इंटरव्यू से रिलेटेड भी एक डाउट आने वाला है कि इंटरव्यू कब होंगे। वो पहले बता देते हैं, हमारे एमएसटी हो जाएंगे उसके बाद होगा, ठीक है, हमारे ऊपर भी बहुत काम है, ठीक है। तो एमएसटी हमारे 26-27 तक है, तो उसके बाद इंटरव्यूज का राउंड क्लियर होगा, हम लोग कवर करेंगे। क्विज हम तुम्हारी ट्यूसडे तक कंडक्ट करा रहे हैं, क्विज में तुम पार्ट ले सकते हो और उसके रिजल्ट्स वगैरह आज। और अगर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं लगा पाए ओरिएंटेशन, तो उसको बोल सकते हो कि फेसबुक लाइव पे देख ले, और हम यूट्यूब पे भी अपने डाल देंगे पूरी रिकॉर्डिंग, और अगर उसको भी क्विज देना है तो वो दे सकता है। और यार एक बार वेबसाइट का लिंक डाल दो, लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट पे करना है। यार जो लिंक ट्री का वेबसाइट, जो लिंक ट्री आया ना, इसी में मल्टीपल लिंक्स हैं, एलयूजी से रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं उसमें वेबसाइट का भी लिंक है। मैं तुम्हें अलग से भी भेज देता हूँ, ये अलग से लिंक है, हमारी वेबसाइट का सीधा लिंक है। बाकी लिंक ट्री का जो वो है उसमें हमारे वेबसाइट से रिलेटेड सभी लिंक्स हैं, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि एलयूजी वेबसाइट, तो वहां पर तुम्हें जाना है, ठीक है। डिस्कॉर्ड, यूट्यूब और उसका इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक का लिंक है उसमें, वहीं से फॉलो कर लेना यार एटलीस्ट किसी एक जगह पे, ताकि अपडेट्स तुम्हें मिलते रहे। चलो ठीक है, फिर रैप अप ठीक करते है। हैं। Yeah, I hope you all liked the session, and we are hoping to see you for the quiz. So all the best for that, and have a good day, all. Thank you. Congratulations to all the ones who have their direct entry into PI. Congratulations.